السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھڑ سوار وہاں نہیں تھے، وہی تھوڑے سے سوار تھے جو پیادوں کے ساتھ تھے، یا خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ گھڑ سوار محافظ تھے۔ آتش پرستوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اندر زگر کے لیے یہ فتح بڑی آسان تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اتنی تھوڑی نفری کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کے سامنے آ کر غلطی کی تھی۔ جس میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھی وہ ہموار میدان تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں دو بلند ٹیکریاں تھی۔ ایک ٹیکری آگے جا کر مڑ گئی تھی، اس کے پیچھے ایک ٹیکری تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کر رکھا تھا، ادھر آتش پرست بھی جنگی ترتیب میں ہو گئے اور دونوں فوجوں کے سالار ایک دوسرے کا جائزہ لینے لگے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آتش پرستوں کے پیچھے دریا تھا، لیکن اندر زگر نے اپنی فوج کو دریا سے تقریباً 1 میل دور رکھا تھا۔ آتش پرستوں کے پہلے سالاروں نے اپنا عقب دریا کے بہت قریب رکھا تھا تاکہ عقب محفوظ رہے، لیکن اندر زگر نے اپنے عقب کو اتنی احتیاط نہ دی۔ اسے یقین تھا کہ یہ مٹھی بھر مسلمان اس کے عقب میں آنے کی ضرورت نہیں کریں گے۔ زرتشت کے پجاریوں اندر جگر نے اپنی سپاہ سے خطاب کیا، یہ ہے وہ مسلمان جن سے ہمارے ساتھیوں نے شکست کھائی ہے، انہیں اپنی آنکھوں دیکھ لو۔ کیا ان سے شکست کھا کر تم ڈوب نہیں مرو گے؟ کیا تم انہیں فوج کہو گے؟ یہ ڈاکوؤں اور لوٹیروں کا گروہ ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ نہ جائے۔ وہ دن یوں ہی گزر گیا۔ سالار ایک دوسرے کی فوج کو دیکھتے اور اپنی فوج کی ترتیب سیدھی کرتے رہے۔ اگلے روز خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو حملے کا حکم دے دیا۔ فارج کی فوج تہ در تہ کڑی تھی۔ مسلمانوں کا حملہ تیز اور شدید تھا، لیکن دشمن کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹ آنا پڑا۔ دشمن نے اپنی اگلی صف کو پیچھے کر کے تازہ دم سپاہیوں کو آگے کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک اور حملے کے لیے اپنے چند ایک دستوں کو آگے بھیجا۔ گھماسان کا معرکہ ہوا، لیکن مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ آتش پرستوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور وہ نیم جیرا پوش بھی تھے۔ مسلمانوں کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک دیوار سے ٹکرا کر واپس آ گئے ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر اور حملے جاری رکھے، مگر مجاہدین تھکن سے محسوس کرنے لگے۔ متعدد مجاہدین زخمی ہو کر بیکار ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ ان کی فوج حوصلہ نہ ہار بیٹھے، خود حملے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگے۔ اس سے مسلمانوں کا جذبہ تو قائم رہا، لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ آتش پرست
उन पर कहे लगा रहे थे। उस वक्त तक मुसलमानों ने खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के जेर कमान जितनी लड़ाइयां लड़ी थी, उनमें ये पहली लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों ने अपने सालार के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज दबा दबा सा था, लेकिन फौज में बेइत्मीनानी सी साफ नजर आने लगी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे अजीम सालार के खिलाफ सिपाहियों की बेइत्मीनानी अजीब सी बात थी। वो पूछते थे कि अपना सवार दस्ता कहाँ है। वो महसूस कर रहे थे कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने मखसूस अंदाज से लड़ नहीं रहे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु सिपाहियों की तरह हर हमले में आगे जाते थे, फिर भी उनके सिपाहियों को किसी कमी का एहसास हो रहा था। दुश्मन की इतनी ज्यादा नफरत देखकर भी मुसलमानों के हौसले टूटते जा रहे थे। इन्हें शिकस्त नजर आने लगी थी। आतिश परस्तों ने अभी एक भी हल्ला नहीं बोला था। अंदर जगर मुसलमानों को थकाकर हमला करना चाहता था। मुसलमान थक चुके थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी फौज की ये कैफियत देख ली, इसलिए उन्होंने हमले रोक दिए थे। वो सोच ही रहे थे कि अब क्या चाल चले कि आतिश परस्तों की तरफ से एक देव हैकल आदमी आगे आया और उसने मुसलमानों को ललकार कर कहा कि जिसमें मेरे मुकाबले की हिम्मत है आगे आ जाए। यह 1000 मर्द पहलवान और तेग जन था। फारस में 1000 मर्द का लकब उस जंगजू पहलवान को दिया जाता था जिसे कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। 1000 मर्द का मतलब था कि ये एक आदमी 1000 के बराबर है। अंदर जगर इस देव को आगे करके मुसलमानों का तमाशा देखना चाहता था। मुसलमानों में उसके मुकाबले में उतरने वाला कोई न था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े से कूदकर उतरे, तलवार निकाली और 1000 मर्द के सामने जा पहुंचे। कुछ देर दोनों की तलवारें टकराती रही और दोनों पैतरे बदलते रहे। आतिश परस्त पहलवान मस्त भैंसा लगता था। उसमें इतनी ताकत थी कि उसका एक वार इंसान को 2 हिस्सों में काट देता। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह तरीका इख्तियार किया कि वार कम कर दिए और उसे वार करने का मौका देते रहे ताकि वो थक जाए। उस पर उन्होंने ये जाहिर किया जैसे वो खुद थककर चूर हो गए हो। ईरानी पहलवान खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु को कमजोर और थका हुआ आदमी समझकर उनके साथ खेलने लगा। कभी तलवार घुमाकर, कभी ऊपर से नीचे को वार करता और कभी वार करता और हाथ रोक लेता। वो तंजिया कलामी भी कर रहा था। वो अपनी ताकत के घमंड में लापरवाह हो गया। एक बार उसने तलवार यूं घुमाई जैसे खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की गर्दन काट देगा। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ये वार अपनी तलवार पर रोकने की बजाय तेजी से पीछे हट गए। पहलवान का वार खाली गया तो वो घूम गया। इसका पहलू खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के आगे हो गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इसी के इंतजार में थे। उन्होंने नोक की तरफ से पहलवान के पहलू में तलवार का इस तरह वार किया कि बर्छी की तरह तलवार उसके पहलू में उतार दी। वो गिरने लगा तो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके पहलू से तलवार खींचकर ऐसा ही एक और वार किया और तलवार उसके पहलू में दूर अंदर तक ले गए। तिबरी और अबू यूसुफ ने लिखा है कि पहलवान गिरा और मर गया। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु उसके सीने पर बैठ गए और हुक्म दिया कि उन्हें खाना दिया जाए।
انہیں کھانا دیا گیا جو انہوں نے 1000 مرد کی لاش پر بیٹھ کر کھایا۔ اس انفرادی معرکے نے مسلمانوں کے حوصلے میں جان ڈال دی۔ آتش پرست سالار اندر زگر نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان تھک گئے ہیں، چنانچہ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ اسے بذا طور پر اپنی فتح کی پوری امید تھی۔ آتش پرست سمندر کی موجوں کی طرح آئے، مسلمانوں کو اب کچلے جانا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے مقابلہ کیا۔ ایک ایک مسلمان کا مقابلہ 10-10 12-12 آتش پرستوں سے تھا۔ اب ہر مسلمان ذاتی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ڈسپلین کا دامن نہ چھوڑا اور بھگدڑ نہ مچنے دی۔ اس موقع پر بھی سپاہیوں کو خیال آیا کہ خالد رضی اللہ عنہ اپنے پہلوؤں کے اس طریقے سے کیوں استعمال نہیں کرتے جو ان کا مخصوص طریقہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ خود سپاہیوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون تھا جو ان کے کسی زخم سے نکل رہا تھا۔ چونکہ ایرانیوں کی نفری زیادہ تھی، اس لیے جانی نقصان انہی کا زیادہ ہو رہا تھا۔ اندر زگر نے اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لیا اور تازہ دم دستوں سے دوسرا حملہ کیا۔ یہ حملہ زیادہ نفری کا تھا۔ مسلمان ان میں نظر ہی نہیں آتے تھے۔ اندر زگر کا یہ عہد پورا ہو رہا تھا کہ ایک مسلمان کو بھی زندہ نہیں جانے دیں گے۔ اندر جگر نے مسلمانوں کا کام جلدی تمام کرنے کے لیے مزید دستوں کو حلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ اب تو مسلمانوں کے لیے بھاگ نکلنا بھی ممکن نہ رہا۔ وہ اب زخمی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس معرکے سے نکل گئے تھے۔ ان کا علم بردار ان کے ساتھ تھا۔ انہوں نے علم اپنے ہاتھ میں لے کر اوپر کیا اور ایک بار دائیں اور ایک بار بائیں کیا، پھر علم بردار کو دے دیا۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی میدان جنگ کے پہلوؤں میں جو ٹیکریاں تھی، ان میں سے 2000 گھڑ سوار نکلے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھی جو انہوں نے آگے کر لی۔ گھوڑے سرپٹ دوڑے آ رہے تھے۔ وہ ایک ترتیب میں ہو کر آتش پرستوں کے عقب میں آ گئے۔ جنگ کے شور و گل میں آتش پرستوں کو اس وقت پتہ چلا کہ ان پر عقب سے حملہ ہو گیا ہے جب مسلمانوں کے گھڑ سوار ان کے سر پر آ گئے تھے۔ یہ تھے مسلمانوں کی وہ سوار دستے جنہیں اندر جگر ڈھونڈ رہا تھا۔ خود خالد رضی اللہ عنہ کی سپاہ پوچھ رہی تھی کہ اپنے سوار دستے کہاں ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی نفری کی کمی اور دشمن کی نفری کی افراد دیکھ کر یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ رات کو تمام گھڑ سواروں کو ٹیکری کے عقب میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ اپنی فوج کو بھی پتہ نہ چل سکے۔ ان کے لیے علم کے دائیں اور بائیں ہلنے کا اشارہ مقرر کیا تھا۔ گھوڑوں کو ایسی جگہ چھپایا گیا تھا جو دشمن سے 1.5 میل کے لگ بھگ دور تھی۔ وہاں سے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز دشمن تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رات کو گھوڑوں کے منہ مان دیے گئے تھے۔ ان 2000 گھڑ سواروں کے کمانڈر بسر بن ابی رحم اور سعید بن مرہ تھے۔ جب صبح لڑائی شروع ہوئی تھی تو ان دونوں کمانڈروں نے گھڑ سواروں کو پابا رکاب کر دیا اور خود ایک ٹیکری پر کھڑے ہو کر اشارے کا انتظار کرتے رہے۔ آتش پرستوں پر عقب سے قیامت ٹوٹی تو خالد رضی اللہ عنہ نے اگلی چال چلی جو پہلے سے طے کی ہوئی تھی۔
पहलुओं के सालारों आसिम बिन अम्र और ऐदी बिन हतीम ने लड़ते हुए भी अपने आप को बचाकर रखा हुआ था। इन्हें मालूम था कि क्या करना है। जब घुड़सवारों ने अकब से हमला बोल दिया तो पहलुओं के इन दोनों सालारों ने अपने अपने पहलू फैलाकर आतिश परस्तों को घेरे में ले लिया। दुश्मन को धोखा देने के लिए खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना महफूज भी मार्के में पहले ही झोंक दिया था। आतिश परस्तों के फतह के नारे आह व बका में तब्दील हो गए। मुसलमान घुड़सवारों की बर्चियां इन्हें काटती और गिराती जा रही थी। दुश्मन में भगदड़ तो उन हजारों ईसाइयों ने मचाई जिन्हें जंग का तजुर्बा नहीं था, और इस भगदड़ में इजाफा दुश्मन के उन सिपाहियों ने किया जो पहले मार्के से भागे हुए थे। वो जानते थे कि मुसलमान किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब मुसलमानों के नारे गरज रहे थे। जंग का पासा ऐसा पलटा कि जरतश्त की आग सर्द हो गई। बाज मोरिखों ने वल्जा के मार्के को वल्जा का जहन्नुम लिखा है। आतिश परस्तों के लिए ये मार्का जहन्नुम से कम न था। इतना बड़ा लश्कर डरी हुई भेड़ बकरियों की सूरत इख्तियार कर गया। वो भाग रहे थे, कट रहे थे, घोड़ों तले रौंदे जा रहे थे। मोरिको ने लिखा है कि अंदर जगर जिंदा भाग गया, लेकिन मदाइन की तरफ जाने की बजाय उसने सहरा का रुख कर लिया। उसे मालूम था कि वो वापस गया तो उर्द शहर उसे जल्लाद के हवाले कर देगा। वो सहरा में भटकता रहा और भटक भटक कर मर गया। दूसरे आतिश परस्त सालार बहमन जाजविया वह अभी तक वल्जा नहीं पहुंची थी। मुसलमानों को ऐसा ही एक और मार्का लड़ना था। आतिश परस्तों के दूसरे सालार बहमन जाजविया को भी वल्जा पहुंचना था, और किसरा उर्द शहर के हुक्म के मुताबिक उसके लश्कर को अपने साथी सालार अंदर जगर के लश्कर के साथ मिलकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर पर हमला करना था। मगर वो वल्जा से कई मील दूर था और उसे यकीन था कि वो और अंदर जगर मुसलमानों को तो कुचल ही देंगे, जल्दी क्या है। उसका लश्कर आखिरी पड़ाव चलने लगा तो 4-5 सिपाही पड़ाव में दाखिल हुए। इनमें 2 जख्मी थे और जो जख्मी नहीं थे उनकी सांसें फूली हुई थी। थकन इतनी कि वो कदम घसीट रहे थे। चेहरों पर खौफ और शब बेदारी के तासुरात थे, और इन तासुरात पर धूल की तह चढ़ी हुई थी। कौन हो तुम? उनसे पूछा गया। कहां से आ रहे हो? हम सालार अंदर जगर के लश्कर के सिपाही हैं। इनमें से एक ने थकन और खौफ से कांपती हुई आवाज में कहा। सब मारे गए हैं। दूसरे ने कहा, वह इंसान नहीं है। एक और कराहते हुए बोला, तुम नहीं मानोगे, तुम यकीन नहीं करोगे दोस्तों, ये झूठ बोलते हैं। जाजविया के लश्कर के एक कमांडर ने कहा, ये भगोड़े हैं और सबको डराकर बेकसूर बन रहे हैं। इन्हें सालार के पास ले चलो, हम इनके सर कलम कर देंगे। ये बुजदिल है। इन्हें सालार बहमन जाजविया के सामने ले गए। तुम कौन सी लड़ाई लड़कर आ रहे हो? जाजविया ने कहा, लड़ाई तो अभी शुरू ही नहीं हुई। मेरा लश्कर तो अभी। मोहतरम सालार, एक ने कहा, जिस लड़ाई में आपने शामिल होना था वो खत्म हो चुकी है। सालार अंदर जगर लापता है। हमारा तेगजन पहलवान 1000 मर्द मुसलमानों के सालार के हाथों मारा गया है। हम जीत रहे थे।
मुसलमानों के पास घुड़सवार दस्ते थे ही नहीं। हमें हुक्म मिला कि अरब के इन बंधुओं को काट दो। उनकी तादाद बहुत थोड़ी थी। हम इनके जिस्मों की बोटियां बिखरने के लिए नारे लगाते और खुशी की चीखें बुलंद करते आगे बढ़े। जब हम उनसे उलझ गए तो हमारे पीछे से न जाने कितने हजार घुड़सवार हम पर आ पड़े। फिर हम में से किसी को अपनी होश न रही। सालार आली मुकाम जख्मी सिपाही ने हांफते हुए कहा, सबसे पहले हमारा झंडा गिरा। कोई हुक्म देने वाला न रहा। हर तरफ नफसा नफसी और भगदड़ थी। मुझे अपनी सिर्फ लाशें नजर आती थी। मैं किस तरह यकीन कर लूं कि इतने बड़े लश्कर को इतने छोटे लश्कर ने शिकस्त दी है। जाज़विया ने कहा। इतने में उसे इत्तला दी गई कि चंद और सिपाही आए हैं। उन्हें भी उसके सामने खड़ा कर दिया गया। ये 13-14 सिपाही थे। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि 3-4 गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गए। तुम मुझे इनमें सबसे ज्यादा पुराने सिपाही नजर आते हो। जाज़विया ने एक अधेड़ उम्र सिपाही से, जिसका जिस्म तवाना था, कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैंने जो सुना है ये कहाँ तक सच है? तुम ये भी जानते होगे कि बुजदिली की, मैदान जंग से भाग आने की और झूठ बोलने की सजा क्या है? अगर आपने ये सुना है कि सालार अंदर जगर की फौज मदीना की फौज के हाथों कट गई है, तो ऐसे ही सच है जैसे आप सालार है और मैं सिपाही हूं। इस पुराने सिपाही ने कहा, और ये ऐसे ही सच है जैसे वो आसमान पर सूरज है और हम सब जमीन पर खड़े हैं। मैंने मुसलमानों के खिलाफ ये तीसरी लड़ाई लड़ी है। इनकी नफरी तीनों लड़ाइयों में कम थी। जरतुश्त की कसम, मैं झूठ बोलूं तो ये आग मुझे जला दे जिसकी मैं पूजा करता हूं। उनके पास कोई ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आती। उनकी ये ताकत उस वक्त हम पर हमला करती है जब इन्हें शिकस्त होने लगती है। मुझे इस लड़ाई का बताओ। सालार बहमन जाज़विया ने कहा, तुम्हारे लश्कर को शिकस्त किस तरह हुई? इस सिपाही ने पूरी तफसील से सुनाया कि किस तरह मुसलमान अचानक सामने आ गए और उन्होंने हमला कर दिया, और इसके बाद ये मार्का किस तरह लड़ा गया। उनकी वो जो ताकत है जिसका मैंने जिक्र किया है, सिपाही ने कहा, घुड़सवार दस्ते की सूरत में सामने आई। इस दस्ते में हजारों घोड़े थे। इनके हमले से पहले ये घोड़े कहीं नजर नहीं आए थे। इतने हजार घोड़ों को कहीं छुपाया नहीं जा सकता। हमारे पीछे दरिया था। घोड़े दरिया की तरफ से आए और हमें उस वक्त पता चला जब मुसलमानों के सवारों ने हमें काटना और घोड़ों तले रोंदना शुरू कर दिया था। आली मुकाम, ये है वो ताकत जिसकी मैं बात कर रहा हूं। आज के लिए इतना ही काफी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।